मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डाइस 2017 की इफ्तिताई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने बैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। डाइस की इफ्तिताई तकरीब के मौका पर सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज के तलबा और तालबात की जानिब से बनाए गए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का विजिट किया। सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा कि डाइस और मस्ट के दरमियान तावन से महारतों और मुलाजमतों के असूल में मदद मिलेगी और बेरोजगारी कम होगी, जो आजाद कश्मीर के नौजवानों के लिए खुश आइंद है। Contributing for the development along with the 6 consortium universities who are working on Pakistan's own indigenous car. We are building on the platform of Mehran because spare parts and all the subsystems are available in the market, and this is inshallah going to be a car in the range of 4 lakh rupees. So car industry, automotive, car is the pride of any nation. So we started a process. We said, how can we innovate it? We said we are going to make a stethoscope which is cordless. You just put your WR thing like here, and it will record your heartbeat and put in your phone. You can mail it directly to your physician. So that is already 60-70%. That one is already done. But we are working on several of these projects. Finally, I just would like to, there's one more project I would like to very quickly talk about in energy and water. One thing we said, like there's hundreds of millions of gallons of water get wasted every day when we do wudu, it goes into the Nali. We said, why can't we recycle that water for non-wudu purposes? For irrigation around the mosque or for flushing and so on. We started this project. And I'm very happy to tell you that I had a meeting a few weeks ago with the CM Sindh, Murad Ali Shah Sahab. I told him that this is a project we would like to replicate in all the mosques in Pakistan. First of all, the same day he said, let's start the project in CM Mosque. And then next day in Energy University, who's actually leading that project, Commissioner Karachi was sitting there with a proposal for 60 mosques. Millions of gallons of fresh water we use for flushing and for irrigation, where we can use this wudu water. My special thanks to the HSC for its constant and strong support to the AJK universities. And I also thank Dr. Ashad Ali, the Executive Director of HSC, for personally attending this important event. Ladies and gentlemen, we agree with the Dice that innovation is lifeblood of nations and economies, and an essential component of sustainable development and prosperity. Dice arrives here in Azad Kashmir at the most appropriate moment as we make our own plans to foster innovation and entrepreneurship through higher education and industrial growth. Right now, we are trying to synergize the efforts of all stakeholders, especially government, universities, industry, and the diaspora community to achieve these goals. We applaud and endorse DICE's objectives to make innovation a part of our national DNA, generate wealth and commoditize digital technologies and bring them to the masses. There is no dearth of ideas for innovation. We do not have to start from scratch in Azad Kashmir and hunt for the out-of-the-box solutions or ideas, but rather concentrate on the goals that are already defined but remain unfulfilled. We know exactly what products will be germane to the emerging research and industrial environment in Azad Kashmir. Innovation will not flourish without dynamic entrepreneurship. Entrepreneurs here in Azad Kashmir and Pakistan, when contemplating new businesses and startups, must fully acquaint themselves with the operating environment and then try to set new trends. Ladies and gentlemen, let me say it with full authority that Azad Kashmir is ripe for this kind of transition. And its landscape should be entrepreneurs' dream come true, with a vast network of educational institutions,
highest overall educational score in the whole of Pakistan. Universities focusing on cutting-edge disciplines such as science, technology, business management and information technology, and women graduates entering into the job market. We have 5 universities, 3 medical colleges, 2 career colleges, and scores of postgraduate colleges. This should be a fertile ground for innovation and entrepreneurship. But before innovation comes, learning and emulation of what is already out there, and then building on that basis. Adaptation of existing technologies, innovation and entrepreneurship can move in tandem as we forge ahead towards a modern economic system in Pakistan and Azad Kashmir. An economic transformation, let me say, has already started here. A vast network of all-weather highways and roads is being built. Energy production capacity in Azad Kashmir at the moment is 1,650 megawatt. But in the next 6 to 7 years, it is set to grow 3 times to 4,500 megawatt with the completion of the Neelam Jhelum, Gulpur, Karod, and Buhara hydropower projects. In 10 to 15 years, Azad Kashmir should be able to increase its hydropower generation to 8,000 megawatt. This will meet Azad Kashmir's own industrial and household demand and contribute an estimated surplus of 6,000 megawatt to Pakistan. There is a treasure trove of minerals in Azad Kashmir. The mineral deposits include marble, granite, phosphate, graphite, bentonite, bauxite, gold and coal in varying quantities. The hills and mountains of AJK boast of some of the finest reserves of ruby, sapphire, topaz and tourmaline. Minerals need to be extracted through modern means to get maximum and optimum output, and to protect environment at the same time. Similarly, advanced lapidary craftsmanship is required for cutting, carving and polishing gemstones. There are deficits in these areas in Azad Kashmir. नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मीरपुर में। यहाँ पर तकरीबन 45 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर स्टूडेंट्स की जानिब से बनाए गए हैं और सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान ने इसका दौरा भी किया और तलबा और तालबात की जानिब से जो प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए हैं उनको सराहा भी गया है। और आज यहाँ पर एक छोटी सी गाड़ी बनाई गई है और इनसे बात करेंगे कि इस गाड़ी में क्या क्या फंक्शंस हैं और ये इसमें कितनी लागत आई है इस गाड़ी को तैयार करने में इनकी। जी, मेरा नाम फैसल रियाज है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ CS एंड IT मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में। ये पाकिस्तान की पहली सेल्फ ड्राइविंग कार है
जिसको हमें बनाने में 3 साल लगे, और इस पर जो टोटल हमारा जी लागत आई है वो 1.2 मिलियन है। कोई शक नहीं कि दुनिया में बाकी भी इस तरह की और सी व्हीकल्स बनाई जा रही हैं, लेकिन ये पहले ह्यूमन इंस्पायर्ड डिज़ाइन व्हीकल है, जिसको बाकायदा हमने कॉपीराइट्स को पब्लिश करवाया यूएसए और यूके के बीच में। ये व्हीकल एक ऐसे व्हीकल है जिसमें आप ना तो स्टीयरिंग है और ना ही ब्रेक्स हैं। आप इसमें आराम से बैठ सकते हैं और इसकी एप्लीकेशन की मदद से आप इसको बता सकते हैं गूगल ऐप से कि मैंने कहाँ पर जाना है, और ये आपको उस पॉइंट से पॉइंट बी तक ले जाएगी। और इसमें बड़ी कैपेबिलिटी ये कि कोलिजन डिटेक्शन और अवॉइडेंस खुद करेगी। तो इसमें क्या फंक्शन है, पेट्रोल डलेगा, डीजल होगा या बैटरीज पे है? जी, अब दुनिया जो है वो क्योंकि ग्रीन टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, तो हमने भी इसको इलेक्ट्रिक कार बनाया है। इसको आप एक बैटरी, सिंपल बैटरी पे इसको आप चला सकते हैं, और वो बैटरी आप अपने घर में किसी भी यूपीएस के थ्रू चार्ज भी कर सकते हैं और दोबारा इसको लगा के आप चला सकते हैं। दैट इज़ प्लग एंड प्ले टेक्नोलॉजी। तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम जो है वो इसका दुरानिया क्या होगा कि जो चार्जिंग है? जी, दुरानिया इसका सिंपल है कि अगर सपोज़ आप 2 से 3 आवर्स इसको अगर आप यूपीएस पे लगा देते हैं तो ये अच्छा चार्ज कर लेगा। अगर आप रात को लगाते हैं और सुबह सफ़र करना तो आप फुली तौर पे इसको चार्ज कर सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से इसको चला सकते हैं। तकरीबन कितना किलोमीटर से? जी, किलोमीटर तकरीबन ये 12 से 15 किलोमीटर करेगी एक बैटरी के बीच में। एक बैटरी में? जी भी, लेकिन क्योंकि बेसिकली हमारा मेन पर्पज़ इसको ऑटोनमस व्हीकल बनाना था, सेल्फ ड्राइविंग कार, तो हमारी ज़्यादा तवज्जो इसकी जो है वो इसके सॉफ्टवेयर की तरफ है। इलेक्ट्रिक जो है वो इसके अंदर हम अगर ड्यूल बैटरी कर देंगे तो ये अपने दुरानी को 30 किलोमीटर तक भी लेके जा सकती है। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पर और भी भाई मौजूद है जिनने यहाँ पर इस गाड़ी को बनाने में मदद की, और इस गाड़ी के हवाले से ही हम बात करेंगे इनसे कि इसमें जो कैमरास लगाए गए हैं उन कैमरास का क्या फंक्शन है? सर बेसिकली हमने कैम को ना, इससे डिस्टेंस जो हमारा आ रहा है ना, हम वो लिडार से और सोनार से मेजर कर रहे हैं। अब वो हमने ह्यूमन इंस्पायर्ड जो है ना डिज़ाइन कोड किया है, उसमें ये होता है कि जैसे जैसे हम देखते हैं ना कि करीब आ रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो उसके मुताबिक अब देखेगा कि फ़लाँ एंगल से ये लिडार है हमारा, जो ये एंगल बता देगा हमें कि इस एंगल से हमारे ऑब्जेक्ट जो अप्रोच कर रहा है, तो हमारा कैम उस एंगल पे जाके फ़ोटो लेगा उसकी, और हमारे जो सॉफ्टवेयर है ना उसको देगा, पास कर देगा, और वो सॉफ्टवेयर उसको एनालिसिस करेगा उसका कि इसमें क्या चीज़ हमारी तरफ अप्रोच कर रही है। और हमने 4 तरीके के इसमें ऑब्जेक्ट्स फ़िलहाल आइडेंटिफाई किए हैं। एक ट्रक को लेके हमने स्ट्रेटजी कोड किया है, एक कार्स को लेके किया, और मोटर बाइक्स को, और जो है हमारे पेडेस्ट्रियंस हैं उनको लेके हमने ये सारा कोड किया। और वो बेसिकली उसका मकसद ही यही है कि हम जो भी अप्रोच कर रहे हैं ना हमारी तरफ ऑब्जेक्ट, उसको हम देख सकें और उसका एनालिसिस कर सकें। इसमें इंटरनेट की भी ज़रूरत होगी गाड़ी के लिए? ऑब्वियसली हम जब जीपीएस से डेटा ले रहे हैं, यानी कि हमने जो पाथ, इसमें जब यूज़र हमारा पाथ देगा कि वो उसकी लोकेशन और उसने डेस्टिनेशन लेनी है, तो वो सारा पाथ लोड होगा, तो वो इंटरनेट ज़ाहिर है उसके लिए ज़रूरी होगा। तो हमने वो जीपीएस के वो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो सारे पॉइंट्स लोड करके फिर उनको फॉलो करके हमने वो जाना है, जहाँ पे भी हमारी डेस्टिनेशन पैसेंजर जाना चाहता है वो हम वहाँ तक ले जाएंगे। सर ये इस प्रोजेक्ट का नाम है रोबोटिक हैंड, और इस रोबोटिक हैंड का पर्पज़ ये है कि ये बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ कर सकता है। जैसे आपको पता है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी काफ़ी ज़्यादा है और बॉम्ब्स वगैरह काफ़ी इश्यूज़ हैं, तो हमारे बॉम्ब डिफ्यूज़ल स्क्वाड्स बॉम्ब के करीब जाके जब उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसमें काफ़ी जानी ख़तरे का नुकसान होता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी लॉन्च करें कि हम इसको सेफ़ डिस्टेंस में बैठ के वायरलेसली हम इसको ऑपरेट करें, बॉम्ब को हम डिफ्यूज़ करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये हमारे हाथ के मोशन की तरह काम कर रहा है, जैसे जैसे हम अपना हाथ मूव करते हैं वैसे वैसे भी मूव करता है। तो हम इस डिवाइस को ड्रोन के ऊपर फिट करेंगे और वो ड्रोन वायरलेसली रिमोटली कंट्रोल करके उसके करीब जाएगा और वहाँ जाके फिर हम इसको अपने गेस्चर्स के साथ काम कर सकते हैं। इसकी रेंज कितनी होगी? इसको तो हम IoT पे ऑपरेट करेंगे, यानी उसका मकसद ये है कि आप इंटरनेट पे दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के ऑपरेट कर सकते हैं इसको IoT टेक्नोलॉजी यूज़ करके। तो इसमें कैमरा वगैरह? कैमरा बिल्कुल ड्रोन के अंदर फिट होगा। ड्रोन के अंदर होगा जी। तो बॉम्ब को डिटेक्ट कितनी है ये बनाने में? अप्रॉक्सीमेटली 55 to 60,000। जी। तो इसके अलावा इसके और क्या फंक्शन हैं जो हमारी जो है मुस्तकबिल है, आप क्या क्या सोच रहे हैं? इसको हम कमर्शलाइज़ करने का सोच रहे हैं, यानी हम सोच रहे हैं कि उसको न्यूरो सेंसर के ऊपर यूज़ करेंगे, यानी जो डिसेबल्ड लोग हैं जिनके हाथ कट जाते हैं किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो वो इस तरह कर सकते हैं कि उसको न्यूरो के सेंसर लगा देंगे और जैसा वो सोचेंगे वैसा सेंसर सिग्नल देगा और उसके मुताबिक ये मूव करेगा। ये आपने जो ग्लव्स लगाए हुए हैं, ये ग्लव्स के अंदर फंक्शन है कि हर उंगली के साथ एक उंगली के साथ हमने सेंसर लगाया हुआ है, हर फिंगर का अपना सेंसर है, जैसे मूव होती है वैसे वैसे ये भी मूव करता रहता है। बिल्कुल जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह ये जो यहाँ पर जो है रिबोट हैंड बनाया गया है, जिसकी मदद से मुल्क में जो दहशतगर्दी है उससे निपटा भी जा सकता है और कई कीमती जानें हैं जो वो भी बचाई जा सकती हैं। नाबीना अफराद हैं जो हमारे माशरे का हिस्सा हैं,
उनके लिए, उनकी सहूलत के लिए एक जो स्टिक बनाई गई है ताकि उनको आगे पता चल सके कि उसमें सेंसर लगे हुए हैं और उन सेंसर्स का क्या कमाल है। और इन बच्चियों ने जो बनाई है ये स्टिक, इस हवाले से ये खुद हमें ब्रीफ करेंगी और ये भी बताएंगी कि किस यूनिवर्सिटी से इनका तल्लुक़ है और क्या इनके प्रोजेक्ट्स में क्या क्या शामिल है। अस्सलाम वालेकुम। फ़ातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी से ताल्लुक़ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। हमने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाई है, राइट टू साइट। उसमें स्टिक भी इन्वॉल्व है और एंड्रॉयड एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटीज़ हैं फॉर ब्लाइंड पर्सनस। ये स्टिक जो है, ये हार्डवेयर हमने इसमें इम्प्लीमेंट किया है। ये स्टिक प्रॉक्सिमिटी सेंस करके ऑब्जेक्ट एंड हर्डल डिटेक्शन बताती है। जैसा कि आपने देखा, वी कैन एडजस्ट 2 रेंजेस ओवर हेयर, 2 मीटर एंड 1 मीटर। दिस इज़ गोइंग स्ट्रेट। अभी कोई हर्डल डिटेक्ट नहीं किया, जैसे ही इनकी तरफ मूव करेगी इसने बीप देना शुरू कर दिए हर्डल डिटेक्ट करके। ना सिर्फ हर्डल, हमने इसमें वाटर डिटेक्टर इनकॉर्पोरेट किया है। अगर नाबीना अफराद फ़र्श के ऊपर ये स्टिक लेके चल रहे हैं, जहाँ कहीं पानी या कोई लिक्विड गिरा हुआ है, ये स्टिक उनको अलर्ट दे देगी एक डिफरेंट बीप प्रोड्यूस करके। तो ये मॉड्यूल हमारा हार्डवेयर सपोर्ट का नाबीना इंसान को अलर्ट करने के लिए कि वो ऑब्जेक्ट को और पानी को डिटेक्ट कर सके, उससे नुकसान ना उठा सके। बाकी की स्पेसिफिकेशन सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की आपको हाजरा नौरीन बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। हमने जो एप्लीकेशन बनाई है उसका हमने सबसे पहले तो इंटरफेस बहुत सिंपल रखा है, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें यह है कि इसमें हमने 4 मॉड्यूल्स इनकॉर्पोरेट किए हैं: फेस डिटेक्शन, टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन, नेविगेशन एंड ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। इस पे हमने कोई बटन को कुछ भी नहीं रखा, क्योंकि ब्लाइंड पर्सन को नहीं पता कि स्क्रीन के ऊपर बटन किधर लोकेट हुआ है। तो अगर वो सिर्फ फ्लिंक करेगा तो हमारे पास फेस डिटेक्शन का मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। उसने इस सेट को NFC इनेबल करके, मतलब NFC इनेबल्ड सेल फ़ोन को हेडफोन के अंदर यहाँ पे प्लेस करना है, हेडसेट के अंदर, और दिखाते हैं ये खुल जाता है। ये इसका मकसद नाबीना अफराद को चलने में मदद देने के लिए फॉर देयर सेफ मोबिलिटी, क्योंकि अगर उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन और स्टिक एट अ टाइम होगी तो उनके लिए चलना थोड़ा मुश्किल होगा। अब आप इसकी फंक्शनिंग देखें। हेडफोन इसके अंदर हमने मोबाइल फ़ोन हेडसेट के अंदर प्लेस कर दिया है। अब इसके नीचे एक मैग्नेट लगा हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। इस मैग्नेट को स्वाइप करने से NFC ट्रिगर होगी और NFC ट्रिगर होने से आपकी पिक्चर क्लिक हो जाएगी। आपके सामने जितने भी पर्सन हैं आपको ये एप्लीकेशन नरेट करके बताएगी। बटन प्रेस किया। देयर आर 4 नंबर ऑफ पीपल फॉर एग्जाम्पल, एंड 2 आर मेल एंड 3 आर फीमेल्स, और 2 आर मेल्स एंड 2 आर फीमेल. And furthermore, we have trained it for 7 kind of emotions. We have trained it. It can detect 7 types of moods: happiness, sorrow, confusion, fear. अगर कोई बंदा डरा हुआ है, कंफ्यूज है, ब्लाइंड के सामने इंसान जिस भी मूड में, ये उसको डिटेक्ट करके उसका मूड बताएगी। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन का, जिसको ओपन करने के लिए जस्ट ब्लाइंड पर्सन को एक सिंगल टैप करना है स्क्रीन के ऊपर और हमारे पास वही कैमरा का बटन ओपन हो जाएगा। कैमरा का मतलब लेआउट हमने कस्टम कैमरा इसके अंदर इम्प्लीमेंट किया जो कि ओपन हो जाएगा। दोबारा ब्लाइंड पर्सन इसको अगर नहीं रखना चाह रहा है हेडसेट के अंदर, दैट डिपेंड्स ऑन हिम। हमने जिस इसको सेफ मोबिलिटी के लिए और इसलिए रखा है कि वो जिस मोबाइल को एक मतलब हिला के पिक्चर ना ले। इसके अलावा ये है कि जैसे ही यहाँ पे मैग्नेट टच होगा NFC ट्रिगर होगी और अगर आपने बेशक उसको इमेज मतलब जो भी आपके हाथ में कार्ड है, कोई भी टेक्स्ट है, आपने उसको उल्टा रखा हुआ है, उसके बावजूद ये एंगल्स खुद करेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये CNIC, क्योंकि ब्लाइंड इंसान को पता नहीं चलता कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ कागज़ सीधा है या उल्टा है। मैंने इसको उल्टा रखा है, डजेंट मैटर, ये बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में सारा का सारा टेक्स्ट आप ये देख लें। इस पर जो भी लिखा है इसने एक्सट्रैक्ट किया, ना सिर्फ एक्सट्रैक्ट किया बल्कि ब्लाइंड पर्सन को सुनवाया, क्योंकि लिखी हुई चीज़ उसको नज़र नहीं आती। इस मॉड्यूल में इसने एज, इमोशन, जेंडर, उसने ऐनक लगाई हुई है नहीं लगाई हुई, प्रेजेंस ऑफ ग्लासेस, उसका हेयर कलर, सब कुछ ना सिर्फ डिस्प्ले किया बल्कि उसको सुनवाया, बोल के बताया। नेक्स्ट मॉड्यूल आप एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारे पास नेविगेशन का। इसमें यह है कि अगर इसी स्क्रीन के ऊपर वो लॉन्ग टैप करेगा तो मैप्स का मॉड्यूल खुल जाएगा, जिसमें ये होगा कि वो यूज़र की करंट लोकेशन जो है वो खुद ब खुद एक्सट्रैक्ट करेगा और यूज़र उसके अंदर अपनी डेस्टिनेशन एंटर करेगा। तो ये हमारा मॉड्यूल जो है उसको मैप मतलब एक पूरा रूट ड्रॉ करके दिखाएगा, जिसमें लीस्ट हर्डल्स होंगे और जो शॉर्टेस्ट रूट होगा। उस मॉड्यूल की सपोर्ट के लिए हमारे पास हार्डवेयर है, स्टिक फिजिकल सपोर्ट उसको यहाँ से मिल रही है और जैसे कि हाजरा ने बताया उसको सॉफ्टवेयर की सपोर्ट नेविगेशन मॉड्यूल में वो एप्लीकेशन प्रोवाइड करिए जो शॉर्टेस्ट रूट बता रही है, नॉट ओनली द शॉर्टेस्ट बट द रूट विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ हर्डल्स। तो इसमें जो है वो हमें ये बता दें हमारे नाज़रीन के लिए कि कितनी लागत आई है आपकी इसको तैयार करने में। हमारी 15,000 मैक्सिमम इसके ऊपर कॉस्ट आई है। अभी हमारा प्रोटोटाइप है, इसको हमें मज़ीद इम्प्रूव करना है। अभी हमने इसके अंदर यूज़ किया ऑर्डिनो यूनो, अभी हमें इसको मज़ीद कॉम्पैक्ट करने के लिए ऑर्डिनो नैनो करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल फोल्डेबल है। इससे पहले जो हमने स्टिक बनाई थी वो स्टिक फोल्डेबल नहीं थी, तो उसको कैरी करना बहुत मुश्किल था। आप ये देख सकते हैं कि ये स्टिक ईजिली फोल्ड हो सकती है, इसको किसी भी बैग में कहीं भी आसानी से लेके कैरी किया जा सकता है।
और ये वापस असेंबल हो जाती है। ये जो है वो मार्केट में जो है वो हम इस पे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। अगर गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे और ऑर्गेनाइजेशंस हमें सपोर्ट करें इसकी फंडिंग में, तो हम ये अभी भी इम्प्लीमेंटेशन रेडी है। इंशाल्लाह 6 से 8 महीने के अंदर बेटर प्रोटोटाइप के साथ और बेटर टेक्नोलॉजी के साथ हम इसको पब्लिक सेक्टर में लॉन्च कर सकते हैं इंशाल्लाह। प्रोजेक्ट में आपका क्या मुस्तकबिल में आप क्या कोई चीज़ मुस्तकबिल में हम इसको देख रहे हैं कि हम इसको स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल में बच्चों के ऊपर लॉन्च करें, क्योंकि जैसा कि आपने देखा स्पेशल बच्चों को ब्रेल के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर मैं या आप ब्रेल सीखना चाहें तो वो बहुत मुश्किल है। अगर एक बच्चे को विद इन फ्यू मिनट्स उसकी स्टोरी बुक का पेज नरेट होके बगैर ब्रेल के ऊपर उंगली फेरे मिल जाता है, तो आई गेस दैट इज़ अ वेरी बिग इफेक्टिव इनोवेशन। लर्निंग आउटकम, इससे लर्निंग प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है और उसके रास्ते में जो हर्डल्स हैं वो हम ओवरकम कर सकते हैं। और जो लोग ब्लाइंड पर्सन ऑफिस में बैठे हैं उनके लिए तो बहुत ही इफेक्टिव है कि अगर उनको कोई पेपर देके जाता है, कोई विजिटिंग कार्ड देके जाता है, तो उनके लिए अब कोई मुश्किल नहीं है। जैसे एक पिक्चर क्लिक करेंगे और पूरा का पूरा टेक्स्ट उनको नरेट बगैर किसी फैसिलिटेटर के, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन का मकसद ही राइट टू साइट है। क्योंकि ब्लाइंड अफराद और माजूर अफराद माशरे का बहुत निगलेक्टेड तबका होते हैं। तो हमारे मोटो है कि ब्लाइंडनेस इज़ नॉट अ स्टिग्मा। जाहिर है आप ब्लाइंडनेस को बहुत सारी सिचुएशंस में क्योर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। वी कैन प्रोवाइड द सॉल्यूशंस। कैमरामैन मोहम्मद साद के साथ फैसल गुलजार, अदालत न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।